Yes, we are to proceed further in this lesson, the march of mind. Very important and interesting as well. Some very valuable ideas have been shared here by S. Radhakrishnan, first Vice President of India, and this is taken from one of his speech delivered during the convocation function of a university. Yes, we were here on page number 11, first paragraph. I think this first 13th line. We need help from others, living or dead. We in this life need help from living as well as from the dead. Who are living and dead? Great masters, great artists who dedicated their life for the welfare of humanity. मनुष्य जाति के भले के लिए जिन लोगों ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, उनसे हमें बहुत कुछ सीखना है, उनसे हमें मदद लेनी होती है. We need help from the great of all ages, the poets, inverted comma, the unacknowledged legislators of the world, the philosophers, the creative thinkers, the artists. These are the pillars of humanity. आप ऐसा समझें कि मनुष्य जाति या हमारा जो सिविलाइजेशन है उसकी नींव इन्हीं लोगों के विचारों पर रखी हुई होती है. इन लोगों ने जो हमें मार्गदर्शन देते हैं जीवन जीने के लिए या एक सही जीवन जीने के लिए, unacknowledged legislators of the world. This terminology is being used for whom? किन के लिए काम में ली जा रही है? Unacknowledged legislator of the world, poets. क्या कह दिया है? Who are the legislators? जो आप और हम जिनको चुनकर बड़े सदनों में भेजते हैं, जो हमारे लिए देश के लिए कानून बनाते हैं, वो क्या है? वो एक्नोलेज्ड हैं. वो हम ही ने चुना है, हमने उनको स्वीकारा है, तो वो एक्नोलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड हैं. और अनएक्नोलेज्ड किन के लिए काम में लिया है? पोएट्स के. In one way or other, poets, or you can say literary figures, are the persons who decide the direction for humanity, that in this direction we should move forward. This is the better one for us. Therefore, poets have been called as unacknowledged legislators of the world. You should keep this expression in your mind. आपको अपने दिमाग में रखना है, एग्जाम में भी कोट करना है, and wherever you may use it for the poets, that they are unacknowledged legislators of the world. पूरी दुनिया के, एक स्थान के नहीं, पूरी दुनिया के लिए ही जो कायदे कानून है वो कौन बनाते हैं? वो ये पोएट बनाते हैं. The philosophers, the creative thinkers, the artists, they are on a broader scale. They are on a broader scale, belonging to almost same category, because poets are also
separately as well. That artists, philosophers and creative thinkers, जो सकारात्मक सोच रखने वाले विचारक हैं, जो सकारात्मक सोच रखने वाले विचारक हैं, वो हमेशा से मनुष्य जाति को सही दिशा दिखाते रहे हैं। इसलिए राधा कृष्णन साहब का मत है कि हमें हमेशा इनकी मदद लेनी चाहिए। Whereas in sciences we can be helped only by the contemporaries, in humanities help comes from the very great to whatever age and race they may belong. We may agree or not, but he is expressing his idea. He is saying that whereas in sciences, almost, although science students also used to take the help of established norms and rules as well, but still they are more helped by contemporaries, because whatsoever has already been invented, that they know as something already achieved, and their target is to move forward. Therefore they are helped by, or rather more helped by contemporaries, कि जो समकालीन लोग हैं वो उनके लिए ज्यादा मददगार साबित होते हैं। समकालीन जो जीनियस है, क्योंकि आप देखें कि साइंस में जो इन्वेंशन हो चुका है उसको ऐसा मान के चलते हैं कि सबने समझ लिया, उसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो नॉन हो जाते हैं। अब नॉन से अननोन की ओर बढ़ना, यही जर्नी लगातार चलती है। कंटेम्परेरीज आर ओल्ड हु ट्राई टू हेल्प ईच अदर फॉर अचीविंग समथिंग बेटर इन द फील्ड ऑफ साइंस। विज्ञान के क्षेत्र में जो समकालीन होते हैं वो सभी एक दूसरे के विचारों से मदद प्राप्त करते हैं और आगे से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं विज्ञान के क्षेत्र में खासतौर से। जबकि इन द ह्यूमैनिटीज, जो मानविकी हमारे वाले विषय हैं, कला संकाय वाले विषय हैं, इतिहास, पोल साइंस, लैंग्वेजेस, ये सारे के सारे ये किसकी मदद से आगे बढ़ते हैं? हेल्प comes from very great whatever age and race they may belong. उनको हेल्प है, वो जो महानतम लोग इस धरती पर हुए हैं उनसे हमेशा हेल्प मिलती है। Although contemporaries are also significant, contemporaries है वो प्रासंगिक हैं, पर उनको हेल्प कहाँ से मिलती है? उनको हेल्प मिलती है जो ग्रेट पिलर्स हैं, वो चाहे किसी भी युग के हों, किसी भी जाति के हों, इट डजंट मैटर, एनी एज एनी रेस, किसी भी युग के, किसी भी जाति के, अगर वो क्लासिक्स हैं, महान लोग हैं, महान विचारक हैं, तो उनसे ह्यूमैनिटीज वाले हैं वो हमेशा मदद प्राप्त करते हैं। एट द डीपेस्ट लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस, in the intimations of the nature of the supreme, S is capital here, and the economy of the universe, in the insights into the power and powerlessness of man, the changing scene of history has its focus. You are supposed to pay some more attention. थोड़ा सा आप ध्यान और दें तो आपको और बेटर समझ में आएगा। एट द डीपेस्ट लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस, वी एग्जिस्ट it cannot be proved easily. Still, to understand the laws of existence is not at all an easy work. To understand the norms of existence is not
एक्टिविटीज ऑफ द नेचर ऑफ द सुप्रीम, उसमें जो सुप्रीम है, सुप्रीम का मतलब ऑल माइटी, वो हमें अपने आप को प्रकट करके बताता है। कहां? डीपेस्ट लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस, कि अस्तित्व का जो गहनतम रूप है, वहां पर तो वो प्रकट ही है, या उसके द्वारा ही ये सारी दुनिया हमारे सामने प्रकट हो रही है। द इकोनॉमी ऑफ द यूनिवर्स, देखिए बहुत ब्रॉड स्केल पे बात कर रहे हैं कि इकोनॉमी कहां की? पूरे यूनिवर्स। यहां पे बहुत सारे प्रिंसिपल है ना, एक साथ काम करते हैं। ध्यान रखना कि इकोनॉमी में हर प्रकार के लोगों की अपनी एक आवश्यकता होती है, महत्व। काम करने वाले सीईओज, काम को इंप्लीमेंट करने वाले, इवन काम न करने वाले, सभी का अपना अपना महत्व है। अब काम न करने वालों का वो भी अलग प्रिंसिपल चलते हैं। इकोनॉमी वालों के लिए किसने, आप लोग थोड़ा सा ब्रॉडर स्केल अपना भी रखे। देखिए जब बड़े लोगों को पढ़ते हैं तो हमें रेंज बड़ी वाइड रखनी पड़ती है। यूनिवर्स की इकोनॉमी में तो पंछी क्या है, वो अजगर करे न चाकरी, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो वो भी इकोनॉमी का हिस्सा है। अब वो कोई ऑफिस जाने वाले नहीं है, कोई काम नहीं करने वाले हैं, भूखे वो भी नहीं सोते, उनके लिए भी उनके हिस्से का उत्पादन भी होता है, उनके लिए उनके हिस्से का उत्पादन भी होता है। इसका मतलब समझे, ये यूनिवर्स की इकोनॉमी है, ये बहुत बड़े स्केल पे, बहुत बृहत्तर, बड़े पैमाने पर हर एक जीव को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। ध्यान में रखना, ऐसा नहीं है कि एक देश की है, ये पूरे यूनिवर्स का जिक्र चल रहा है, पूरे ब्रह्मांड की इकोनॉमी। इन द इनसाइट्स इनटू द पावर एंड पावरलेसनेस ऑफ मैन, और मनुष्य के शक्ति और शक्ति विहीन दोनों का इसमें समावेश है। इसमें बड़े लोगों की जो जिक्र है उसमें शक्तिशाली के लिए भी स्थान है, तो शक्ति विहीन के लिए भी स्थान है। आप बेटा थोड़ा सा गहराई से सोचेंगे तो आपको पता चल जाएगा। कैसे? कि ये जो पावरफुल और पावरलेस है ना, ये अपने आप में कोई पावरफुल और पावरलेस नहीं होता। फिर कैसे होता है? पावरफुल और पावरलेस बोथ आर रिलेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। मनुष्य जीवन के सापेक्षिक आयाम हैं। कोई पावरफुल, आप समझिए कि आप अपने संदर्भ में एग्जाम्पल लीजिए, मैं मेरे संदर्भ में लेता हूं, हम ऐसे ही लेते हैं। जैसे मेरे लिए कोई व्यक्ति बड़ा पावरफुल है, या जिसको मैं पावरफुल मानता हूं, उसका मतलब क्या हुआ पता है? कि उसकी तुलना में मैं कम पावरफुल हूं, इसलिए वो मेरे लिए ज्यादा पावरफुल। हो सकता है उसके लिए भी और पावरफुल हो। हर शेर का सवा शेर बनाया है, सुन रखा है आपने? और बड़े मजे की बात समझिए कि हो सकता है मैं भी किसी के लिए पावरफुल हूं। कोई ऐसा है जो मेरे को ही पावरफुल मानता है,
और मैं किसी और को पावरफुल मानता हूं, व्हाट डज इट शो? दैट दीज आर रिलेटिव एस्पेक्ट्स, सापेक्षिक आयाम हैं। अब सापेक्षिक रूप से ही कोई कमजोर है, सापेक्षिक रूप से ही कोई पावरफुल है। अल्टीमेट कोई कमजोर नहीं है, कोई पावरफुल नहीं है। ये तो अल्टीमेट पावरफुल है तो रहता नहीं है, ऑल टाइम के लिए कोई नहीं है एक्सेप्ट ऑलमाइटी। ऑलमाइटी के अलावा और कोई भी पावरफुल होता ही नहीं, और होता है तो वो एक थोड़े से स्पान के लिए सापेक्षिक रूप से होता है, उसमें भी वो अपने पावर को पचा नहीं पाता, कंट्रोल नहीं कर पाता कि मेरे में तो इतनी ज्यादा शक्ति है। The changing scene of history has its focus. इतिहास के जो परिवर्तित होते हुए दृश्य होते हैं, उन पर भी मनुष्य को फोकस रखना होता है। इतिहास के जो परिवर्तित होते हुए परिदृश्य हैं, उनके ऊपर फोकस रखने से, ध्यान केंद्रित रखने से हमें मनुष्य जाति के द्वारा किए गए अच्छे बुरे सभी प्रकार के कामों का पता चलता है। तो ये क्या है? डीपेस्ट लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस के बारे में बता रहे हैं कि जो अस्तित्व है उसका जो गहनतम स्तर है वो ऐसा है। The events of history reflect the events in the souls of man. इतिहास की घटनाएं क्या परिलक्षित करती है? इतिहास की घटनाएं क्या परिलक्षित करती है? इतिहास की घटनाएं रिफ्लेक्ट करती है इवेंट्स इन द सोल ऑफ मैन, कि मनुष्य जाति की अंतरात्मा में घटनाएं कैसे घटित हुई थी। मनुष्य जाति की अंतरात्मा, हर मनुष्य की अंतरात्मा होती है और उसमें घटनाएं घटित होती है, वो उनको महसूस करती है और उस महसूस करने से आगे की पीढ़ी में उन घटनाओं का स्थानांतरण होता है कि पुरानी पीढ़ी हमें क्या बताती है जो उनकी अंतरात्मा ने महसूस किया, हम आगे क्या बताएंगे जो हमारी आत्मा महसूस की। In this country has survived all the changes and chances it has passed through. It is because of certain habits of mind and conviction which our people, whatever their race or religion may be, share and would not surrender. हमारे परिप्रेक्ष्य में, मनुष्य जाति के परिप्रेक्ष्य में राधा कृष्णन क्या बता रहे हैं? In this country means in India has survived all the changes and chances it has passed through. हमारा देश बहुत सारे परिवर्तनों से गुजरा है। आप लोग पढ़ते आए हैं यहाँ पर कितने आक्रांताओं ने हमले किए, इस देश की बुनियाद को हिलाने का प्रयास किया, पर हम उस सभी को सहकर आगे बढ़े, सरवाइव किया उन सारे चेंजेस को, चांसेस, ऐसे संयोग खूब आए हैं इतिहास में। भारत के इतिहास में ऐसे चांसेस, आपको जो इतिहास के विद्यार्थी हैं पता होगा कि उन चांसेस को अगर वो राजा महाराजा अवेल करते
करते तो इतिहास कुछ और होता। ये बातें बाद में हमेशा कही जाती है कि अमुक ऐसा करता तो पता नहीं क्या होता, अमुक ऐसा करता। अब जो हो चुका है उससे हमारे को सीखने का यही है कि हमारा देश उन सभी परिस्थितियों में सर्वाइव कर गया, उनसे आगे बढ़ा। इट इज बिकॉज ऑफ सर्टेन हैबिट्स ऑफ माइंड एंड कंडीशन। ये सारा हुआ किस कारण कि हमारे लोगों की सोचने की कुछ आदतें हैं, सोचने की कुछ आदतें हैं, कुछ हमारी कन्विक्शन का मतलब अवधारणाएं हैं। अब वो हमें पेरेंट्स से मिलती समझ लो, समाज से मिलती हुई समझ लो, संस्कृति से मिलती हुई समझ लो, पर वो हम सभी में पाई जाती है, whatever their race और religion में भी, कि चाहे उन लोगों का, हमारे देश के लोगों का बता रहे हैं, वो चाहे किसी जाति किसी धर्म से हो, जो मानसिकता है उसमें समरूपता पाई जाती है। एक स्तर पर जो मानसिक लेवल है उसमें कुछ एक आदतें, कुछ एक अवधारणाएं समान रूप से सभी लोगों में विद्यमान पाई जाती है और उनको हम क्या है आपस में शेयर करते हैं। सरेंडर नहीं करना। सरेंडर का मतलब क्या है? समर्पण। समर्पण क्या? आत्मसमर्पण हो गई दुश्मन के सामने। हमारे देश के लोग सामान्यतया दूसरे के सामने आत्मसमर्पण नहीं करते हैं। ऐसे कन्विक्शन, ऐसी अवधारणाएं उनमें व्याप्त। The central truth is that there is an intimate connection between the mind of man and moving spirit of the universe. थोड़ा सा गरिष्ठ भोजन आ गए, आपको हर वीडियो में बताता हूं मैं ये। अब इस संबंध को समझने के लिए आदमी को उस स्तर पर पहुंचकर महसूस करना होता है। गौर से सुने लाइन वापस। The central truth is, मुख्य बिंदु, मुख्य सत्य क्या है? There is an intimate connection. इंटीमेट क्या होता है? बड़ा नजदीकी, अंतरंग, बहुत क्लोज रिलेशन है बिटवीन द माइंड ऑफ मैन एंड मूविंग स्पिरिट ऑफ द यूनिवर्स। अब देखिए हमारा जो ये टाइटल है इसकी सिग्निफिकेंस यहां पर सिद्ध हो रही है। माइंड ऑफ मैन, मनुष्य का दिमाग, एंड मूविंग स्पिरिट ऑफ यूनिवर्स, हमारे दिमाग और इस पूरे यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड की जो स्पिरिट है उसमें एक बड़ा गहन संबंध है, अंतर संबंध है, इंटीमेसी है, नजदीकी है। उसे अब आप और हम समझ पाए या नहीं समझ पाए ये हम पे डिपेंड करता है। इसका मतलब ये कतई नहीं होता कि आपको और मेरे को समझ में नहीं आ रही तो वो चीज अस्तित्व में नहीं है। आपको और मेरे को अगर समझ में नहीं आ रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो है नहीं। हमारा मानसिक लेवल थोड़ा कम रह गया, हमें ये मानना चाहिए न कि है ही नहीं। अरे हमारे मनोमस्तिष्क, विचारधारा और मूविंग स्पिरिट ऑफ यूनिवर्स, उनमें बड़ा ही गहन संबंध होता है। इसका छोटा सा पॉइंट आप सोचना, विचार करना तो आपको समझ में आएगा कि आपके और मेरे, मनुष्य में किसी के भी, हमारे दिमाग में हजारों तरह के विचार अलग अलग समय पर आते हैं
या नहीं आते? आते हैं। अब आप थोड़ा सा ये और इसके आगे विचार करें कि इनमें से अधिकांश हमारे इच्छा से, हमारे नियंत्रण से नहीं आते हैं। हमारी इच्छा से, हमारे नियंत्रण से विचार नहीं आते। जब भी तो आप लोगों को दिक्कत होती है एग्जाम टाइम में, पेपर देने बैठते हो, विचार आ रहा है बाजार का। अब पेपर में पेपर का आना चाहिए, बाजार जाए बाजार का आना चाहिए, बाजार जाते हैं जब भोजन का आ रहा है, घर का आ रहा है, घर में रहते हो तो कॉलेज का आ रहा है। हमारा अपने विचारों पर पूर्णतया नियंत्रण नहीं होता है। या ये समझें कि मनो मस्तिष्क में जो आइडियाज आते हैं उनकी टाइमिंग और उनका कंटेंट, टाइमिंग एंड कंटेंट both are controlled by this moving state of universe। जो दुनिया की हम बता रहे हैं अंतरात्मा, उसके साथ इसका संबंध होता है। वो ये निर्धारित करती है कि अमुक व्यक्ति को इस प्रकार के विचार इस समय में देने हैं। किसके माध्यम से देने हैं? कोई ना कोई माध्यम भी बनता है। ये थोड़ी सी गहन बातें हैं, पर गहन बातों को पढ़ने का अब आपका समय आ गया है, क्योंकि थर्ड ईयर में आप आ गए हैं और आगे आप अच्छे स्कॉलर बनेंगे, अच्छे लेवल को टच करेंगे। तो आपको अभी से थोड़ी सी ये मानसिक एक्सरसाइज है, ये शुरू कर देनी पड़ेगी। We can realize it through the practice of self-control and exercise of compassion। देखिए, ऐसा मैंने आपको बताया कि कंट्रोल नहीं होता है, इसलिए इन्होंने क्या कहा है कि हमें इस बात को महसूस कैसे करना चाहिए, कैसे हम रियलाइज कर सकते हैं कि भाई हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम सेल्फ कंट्रोल करें। अरे सेल्फ कंट्रोल किसका करना पड़ता है? जो कंट्रोल में नहीं है तभी तो सेल्फ कंट्रोल करेंगे। अगर सारे विचार हमारी इच्छा से ही आते तो उनको नियंत्रित करने की जरूरत ही नहीं थी। तो हम शांत चित्त होकर बैठें और देखें कि कब कौन सा विचार आता है और उस समय ही वो विचार क्यों आता है। फिर हम उसको थोड़ा बहुत अपनी क्षमताओं के अनुसार नियंत्रित करने का प्रयास करें। एंड अनदर थिंग दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइज ऑफ कंपैशन। कंपैशन क्या होता है? दूसरों के लिए सदाचार, दया, क्षमा, भला, दानशीलता, ऐसा भाव रखें। दूसरों के लिए हमेशा अच्छे भाव रखने का भी अभ्यास करें। ये क्यों बताया? क्योंकि हर समय हमारे दिमाग में, हर समय क्या, ज्यादातर समय दूसरों के लिए अच्छे विचार नहीं आते। बेटा सोच के देखना और अपने आप से तो कम सच बोलना। दूसरे को तो हम नहीं बताते हैं कि तेरे लिए मेरे मन में वास्तविक रूप से क्या है, पर हमें खुद को तो खुद से सच बोलना होता है। अब हमें जो भी हमारे से किसी भी मामले में अगर पिछड़ा हुआ है तो उसको अपने बराबर लाने का प्रयास करने का विचार आना चाहिए। जैसे आप समझे कोई विकलांग है तो उसको जो अंग उसके नहीं है उसकी हम हमारे अंग के द्वारा पूर्ति करने का एटलीस्ट सोचें। अरे जिसके आंख नहीं है वो देख नहीं सकता, आपको मेरे को ईश्वर ने आंख दी है तो
उसको देखकर बता सकता है। दिस इज कंपैशन। भले का भाव, इसका अभ्यास करना पड़ता है कि हमारे जो भी कोई संपर्क में आए तो देखो बेटा, आपको मैं बड़ा स्पष्ट रूप से बता रहा हूं कि ज्यादातर हम में से क्या सोचते हैं पता है, कि ये मेरे क्या काम आ सकता है, ये मेरे क्या काम आ सकता है, ये आप इसको मैं कैसे मेरे हित में काम में लूं। ये उल्टा सोच है। अब जो कंपैशन वाली सोच का व्यक्ति है वो क्या सोचेगा, वो ये सोचेगा कि मैं इसके क्या काम आ सकता हूं, मैं मेरी वर्तमान क्षमताओं के अनुसार इसका थोड़ा बहुत भी भला कैसे कर सकता हूं। तो अब देखिए हम कौन सी कैटेगरी में हैं। पहले वाली कैटेगरी में ही मिलते हैं, तो हमें ऐसा अभ्यास करना चाहिए कि वी शुड बिकम कंपैशनेट फॉर होल ह्यूमन रेस। हमारे चारों तरफ जो भी प्राणी हमें मिलते हैं, तो हम ऐसा सोचें कि इनके लिए मैं क्या कर सकता हूं, न कि ऐसा कि ये मेरे लिए क्या करे। तो हमारा जो यूनिवर्स है वो ऐसा समझे कि लगभग हेवन बन जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा, जिस दिन हम ये सोचने लग जाएंगे कि मैं बाकियों के कैसे काम आऊं। सारे अगर ऐसे सोच रहे, अब आप तो ऐसा सोच रहे हो, देखिए बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं कि मैं कैसे काम आऊं, और वो दूसरा व्यक्ति ये सोच रहा है इसको कैसे काम में लूं। तो फिर क्या है, वो टूल बन जाता है। उसमें भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जिसके भाव अच्छे हैं वो अगले की सोच है वो टूल समझता है, तो समझे आपने भले के भाव से अगर भला किया है, दैट इज कंपैशन। These principles have remained the framework into which were fitted lessons from the different religions that have found place in this country. हमारे देश में जो कोई भी रिलीजन है, उनमें ये सारे के सारे जो प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, दया का भाव, दूसरे के लिए भले का भाव, ये हमारे यहाँ के सभी धर्मों का फ्रेमवर्क होता है, ढांचा। ऐसा कोई धर्म नहीं है हमारे यहाँ जो किसी का बुरा करने का बताता हो। सभी दूसरे की मदद के लिए ही प्रेरित करते हैं कि कोई भी अगर कम सक्षम है तो उसको हम और सक्षम बनाने का प्रयास करें अपनी क्षमताओं के अनुसार। हमें जितना सक्षम ईश्वर ने बनाया है, तो हम अपनी क्षमताओं के अनुसार दूसरे को सक्षम बनाने का प्रयास करेंगे। तो मजे की बात ये देखिए कि हमारी क्षमताएं कभी घटेगी नहीं, दूसरे व्यक्ति की बढ़ेगी और हमारी भी बढ़ेगी। अपनी क्षमताओं का किसी की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं जब हम, तो हमारी क्षमताएं कम नहीं होती है, कभी भी उत्तरोत्तर बढ़ती है। यही प्रकृति का नियम है, यही फ्रेमवर्क है हमारे देश के जितने भी रिलीजन हैं कि भला करते जाओ, भला होता जाएगा। ऑटोमेटिक सिस्टम है, जो सॉफ्टवेयर है ऊपर वाले का, वो मनुष्य की समझ से परे है, ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है कि हम उससे ज्यादा सोच सकते हैं, पर जितना जितना हमारे अनुभवी विद्वान लोगों के इस धरती पर अपने जीवन में अनुभव आया है, समझ आई है, और उन्होंने उस अनुभव को, समझ को हमारे साथ शेयर किया है, ये भी उनका हमारे सबके भले का प्रयास है। जैसे ये लेसन उन्होंने अपने लिए बनाया, इसलिए कि हम सबका, पूरी मनुष्य जाति का, जो भी पढ़े सबका भला हो, ऐसा भाव रखते चले।
लेसन्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स दैट हैव फाउंड प्लेस इन द कंट्री। ये सभी रिलीजन जो हमारे देश में पाए जाते हैं उनमें यही लेसन, यही पाठ पढ़ाए हुए हैं कि गरीब का हमेशा भला करें, भला ही सोचें। आवर हिस्ट्री इज नॉट मॉडर्न। हमारा जो इतिहास है ना वो आधुनिक नहीं है, हमारा इतिहास बहुत प्राचीन है। धरती की शुरुआत से लगभग ये मान कर सकते ये मनुष्य जाति है वो यहाँ हमारे देश में पाई गई। तो हम इतिहास को ऐसा नहीं बोल सकते कि हमारी आधुनिक सभ्यता है और अभी 100, 200, 500 साल में हम बने हैं और धरती पर हमारा उद्भव हुआ है, ऐसा नहीं है। हमारा इतिहास बहुत बहुत प्राचीन है। It is like a great river, it is source back in the silence. हमारे इतिहास की तुलना देखिए कितनी शानदार। ये बड़े लोगों की लैंग्वेज और आइडिया जैसे होते हैं बेटा। क्या बता रहे हैं? इट इज लाइक ए ग्रेट रिवर। महानतम जो नदियां होती है जैसे नाइल, जिसको हम हिंदी में नील नदी बोलते हैं। पूरा देश इजिप्ट जो है नील नदी का वरदान माना जाता है। हमारा देश गंगा नदी के किनारे ही बसा। शुरू में हमारी जो सभ्यता है सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा सिंचाई क्षेत्र को कवर करने वाली, उनसे तुलना करें वो वर्तमान में भी हैं, बह रही हैं, सभी का भला कर रही हैं। हमारा इतिहास उनके जैसा है, ग्रेट रिवर विथ इट्स सोर्स बैक इन साइलेंस। पर उनका जो सोर्स है, उनका जो उद्गम स्थल है वो तो बड़ा शांत है। वो कोई शोर करती थोड़ी आ रही है, वो कोई प्रचार थोड़ी कर रही है। जितने हजारों सालों से इतने करोड़ों अरबों लोगों की मैंने सेवा की है, पालन किया है, ऐसा नहीं। वो निस्वार्थ भाव से सदैव पूरी मनुष्य जाति के भले के लिए बहती रहती है। वैसा हमारा इतिहास है कि चुपचाप काम करना, कोई अपेक्षाएं नहीं, कोई रिवार्ड की आकांक्षाएं नहीं, अच्छा काम करना, अच्छा सोचना। तो आप देखें कि जो अच्छे लोग हैं वो उनके प्रति कृतज्ञता का भाव स्वाभाविक रूप से रखते हैं कि ये हमारे लिए वरदान है। हमारा अस्तित्व अप्रत्यक्ष रूप से उन्हीं पर निर्भर है। Many ages, many races, many religions have worked at it. बहुत सारे युगों में बहुत सारी जातियों ने, बहुत सारे धर्मों ने इस पर कार्य किया है। इस पर मतलब इस सिद्धांतों पर, भला करने के सिद्धांतों पर युगों युगों से और बहुत से धर्मों जातियों द्वारा कार्य होता रहा है। आज भी हो रहा है, आगे भी होता रहेगा। It is all in our bloodstream. It is all in our bloodstream. ये जो नेचर की प्रवृत्ति है ये हम सभी के रक्त नलिकाओं में बह रही है, रक्त वाहिनियों में बह रही है। ये जो प्रवृत्ति है बेनोवेलेंस, कंपैशन, ये हमारा मूल भाव है। और मूल भाव है वो जीव के साथ ही बना रहता है, वो उसको छोड़ता नहीं है, वो उसके साथ रहता है। इट इज देयर इन आवर ब्लड। फ्लैश एंड ब्लड जो बोलते हैं, फ्लैश एंड ब्लड इन इंग्लिश यूज फॉर ह्यूमन नेचर। तो हमारी ऐसी प्रवृत्ति ही है। ये भारतीय लोगों के बारे में, भारतीय लोगों के परिप्रेक्ष्य में हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति, द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन के विचार हम पढ़ रहे हैं। यू आर गेटिंग द पॉइंट एंड डिस्कस इट थोरोली विथ ईच अदर एज वेल।
think it over twice and ruminate, ponder over it. Thank you very much for today.